ناظرین آداب، پیش ہے اردو خبرنامہ۔ میں ہوں شیخ انوار الحق۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ تعلیم کامیابی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے اور ہر مذہب تعلیم پر زور دیتا ہے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ صحت اور تعلیم کی وزیر کا لولاب سب ڈویژن کا دورہ، کئی ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ کلگام اور بانڈی پورہ میں حفاظتی عملے اور ملٹنٹوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد تلاشی کارروائی جاری، اور ریاسی ضلع میں آج ایک سڑک حادثے میں 15 یاتری زخمیوں کا تعلق سیتاپور اتر پردیش سے ہے۔ اب پیش خدمت ہے ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ تعلیم کامیابی کا طاقتور ذریعہ ہے اور ہر مذہب تعلیم پر زور دیتا ہے۔ وہ آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے فاؤنڈیشن ویک کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر یونیورسٹی کی طرف سے اپنی حصولیابیوں کے بارے میں ٹیک ایکسپو کا بھی افتتاح ہوا۔ منوج سنہا نے یونیورسٹی کی طرف سے طالب علموں کو بہتر تعلیم دینے کے رول کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ یونیورسٹی جہاں بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کر رہی ہے، وہیں یونیورسٹی سکل ڈیولپمنٹ کی طرف سے خاص توجہ دے کر روزگار کے وسائل میسر کرانے میں مدد کر رہی ہے۔ تقریب پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو اور دیگر شخصیات موجود رہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی سری نگر کا آج کنووکیشن منعقد ہوا۔ طلباء کے لیے منعقد اس کنووکیشن کے موقع پر ایل جی منوج سنہا مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ انہوں نے گریجویشن مکمل کرنے والے طلباء کی عزت افزائی کی۔ صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج لولاب سب ڈویژن کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے جی ڈی سی سوگام اور جی ایچ ایس ایس ٹیکی پورہ میں کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس دوران انہوں نے لوگوں سے بات کر کے ان کے مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج سوگام میں ارتھ سائنس بلاک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے لولاب کیسر جمشید لون اور ڈپٹی کمشنر کپواڑہ آیوشی سودن بھی موجود تھیں۔ وزیر نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹکی پورہ میں رہائشی کوارٹر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی لیڈران اور کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ تنظیم کے آئین، اصولوں اور نیا کشمیر کے پروگراموں پر گامزن رہیں۔ وہ آج سری نگر کے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف اضلاع سے آئے ہوئے پارٹی لیڈران، عہدیداران اور عوامی وفود سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل کا ازالہ کرایا جائے گا۔ عیدگاہ اسمبلی حلقے کے ممبر اسمبلی مبارک گل نے آج یو پی ایچ سی نرورہ سری نگر کا دورہ کیا۔ یہاں انہوں نے لوگوں کو دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مقامی لوگوں سے بات کر کے طبی سہولیات کے حوالے سے ان کی مشکلات کی جانکاری حاصل کی اور محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کی طبی سہولیات کے حوالے سے مشکلات کو فوری طور دور کریں۔ انہوں نے لوگوں سے الگ میٹنگ کر کے ان کے دیگر مسائل کے بارے میں بھی بات کی۔ سکاسٹ کشمیر کی طرف سے کے وی کے اننت ناگ کیمپس میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس بیداری پروگرام میں کسانوں، باغ مالکان، طالب علموں اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کے دوران سوال جوابات کا ایک سیشن بھی ہوا۔ اس موقع پر ماہرین نے کسانوں کو جدید زرعی طور طریقوں کی جانکاری فراہم کی۔ ماہرین نے کسانوں اور باغ مالکان پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر اپنے پیداوار کو فروغ دیں۔ ناظرین خبریں جاری ہیں، پہلے یہ تجارتی وقت۔ ایکسکیوز می سر، یہ میرا استعفیٰ۔ کیوں؟ سر یہاں کے ٹیوب لائٹ سے میرے کو الرجی ہوتا ہے سر۔ اوکے؟ مجھے یہاں کا واسطو پسند نہیں ہے۔ راکٹ سائنس سیکھنا ہے۔ مجھے بالی ووڈ میں جونیئر آرٹسٹ کا رول ملا ہے سر۔ سر میرا کوئی مذاق ہے کیا؟ ایک سے ایک گھٹیا ریزن دے کے ریزائن کر رہا؟ آپ نے موہت کو HIV کے کارن جاب سے نکالا تھا، وہ نہیں تھا گھٹیا ریزن۔ بھید بھاؤ ان کے ساتھ کیجئے جو HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ موہت، میرا استعفیٰ۔ کیا ہے یہاں کا باس ٹھیک نہیں ہے یار، سوری یار۔ کام کیجیے آپ لوگ۔ HIV ایڈز اپنے پن کو نہیں مار سکتا۔ ناظرین خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔
कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से रमबीरगढ़ श्रीनगर में आज पोल्ट्री स्टेक होल्डरों की मीट कम बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का मकसद पोल्ट्री किसानों को जदीद साइंसी तकनीक से रोशनास कराना था। प्रोग्राम में सुकास्ट कश्मीर के वेटरनरी के फैकल्टी ने भी शिरकत की। इन माहिरीन ने पोल्ट्री जानवरों की वैक्सीनेशन और इन्हें बेहतर ग़िज़ा फराहम करने की पोल्ट्री किसानों को तलकीन की। रियासी जिले में आज एक सड़क हादसे में 15 यात्री उस वक्त जख्मी हुए जब माता वैष्णव देवी अस्थापन से शिवखुड़ी जा रही यात्रियों की एक बस सुंबलचुआ के मकाम पर एक दूसरे गाड़ी से टकरा गई। जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये सभी जख्मी यात्री सीतापुर यूपी से ताल्लुक रखते हैं। बिहीबाग कुलगाम के सदसुना इलाके में आज मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान एक झड़प शुरू हुई। एसएसपी कुलगाम का कहना है कि हिफाजती अमले और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाईं। हिफाजती अमले ने जवाबी कार्रवाई की। बताया जाता है कि इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। बांडीपुरा जिले के निगमर्ग इलाके में कल शुरू हुई झड़प आज भी जारी है। दूसरे दिन आज इलाके में तलाशी कार्रवाई को वसी करने के लिए हिफाजती अमले को मजीद कुमक रवाना कर दी गई है। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने पर कल हिफाजती अमले ने इस इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई। जवाब में हिफाजती अमले ने भी गोली चलाई और यह कार्रवाई जारी है। गुलनार पार्क बारामुल्ला के नजदीक आज दरियाई जहलम के किनारे एक जंग आलूद शल बरामद हुआ। पुलिस ने वहां पहुंचकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। NIA ने श्रीनगर के जालडगर इलाके में इस साल फरवरी के महीने में 2 गैर मकामी बाशिंदों को हलाक किए जाने के मामले में एक 2 मंजिला इमारत को जब्त किया है। 10 मरला जमीन पर बना ये मकान आदिल मंजूर लुंगू का है। NIA ने आज ये मकान अटैच किया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर की तरफ से बारामुल्ला में वार्तालाप नामी मीडिया वर्कशॉप कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद मीडिया से वाबस्ता लोगों के साथ तालमेल बढ़ाना है। प्रोग्राम का इफ्तिताह बारामुल्ला के जिला तरक्याती कमिश्नर मिंगा शेरपा ने किया। इस मौके पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के ज्वाइंट डायरेक्टर काजी सलमान भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम के दौरान मरकजी सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्रामों के अलावा जिले की तरक्की और मीडिया की तरफ से अवाम में बेदारी पैदा करने के काम को उजागर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि जिला इंतजामिया मरकजी स्कीमों और दीगर फलाही प्रोग्रामों का अवाम तक फायदा पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम टू टाइम, क्योंकि मीडिया जो स्पेशली हमारी लोकल मीडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नॉट जस्ट कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, कोई भी गवर्नमेंट का अपडेट्स हो, कोई रिक्रूटमेंट हो, कोई इश्यूज हो, कोई सर्कुलर्स हो, उनको डिसिमिनेट करने के लिए। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें PIB, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो लोकल मीडिया हम इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के जो मसाइल है सुनते हैं, जो हमारे इश्यूज है उनको डिस्कस करते हैं। PIB श्रीनगर के जॉइंट डायरेक्टर काजी सलमान ने सरकार और लोगों के दरमियान करीबी राबता बनाने के PIB के रोल की वजाहत की। मिलाएं और ये जो वार्तालाप है ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव रहता है कि लोकल जर्नलिस्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के को आपस में मिलाएं और PIB को भी उनके साथ नई कम्युनिटी बनाएं और जो इनिशिएटिव्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए हैं यहाँ पे उनको उजागर करें और उनके बारे में बात करें जर्नलिस्ट से, ताकि वो लोगों तक पहुंचाएं। तो इसमें यहाँ पे DC साहब आए थे, DC बारामुल्ला आए थे, उन्होंने बात की कि क्या क्या जो यहाँ का तरक्याती मंजरनामा है उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ पेश आई। ओवरऑल हमने जो स्कीम्स के बारे में बात की है कि बारामुल्ला में क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और उनकी क्या क्या सक्सेसेस रहे हैं। इससे कबल PIB श्रीनगर के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कौल ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों तक सरकारी फलाही स्कीमों का फायदा पहुंचाने के लिए मीडिया और इंतजामिया के दरमियान करीबी राबता रहना चाहिए। वजारत इत्तलात व नशरियात के CBC यूनिट अनंतनाग की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में मुनक्किदा 2 रोज़ा आउटरीच प्रोग्राम कम फोटो एग्जीबिशन आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान ICD, हेल्थ, एजुकेशन, ज़राअत, हॉर्टिकल्चर और दीगर महकमों के रिसोर्स पर्सनस ने तरक्की, साफ सुथराई, मुकव्वी ग़िज़ा, मयारी ज़रई कामों और माहौलियात
को आलूदगी से बचाने के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर CBC श्रीनगर नसीर अहमद रथर ने प्रोग्राम के अगराज व मकासद बयान करते हुए कहा कि प्रोग्राम के जरिए लोगों को मरकजी सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। कैंसर सर्वाइवर्स कश्मीर अवेयरनेस इवेंट का आज बेमना श्रीनगर के डिग्री कॉलेज में इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज के इश्तिराक से मुनक्किद किया था। इस प्रोग्राम के दौरान कैंसर की बीमारी से सेहतयाब हुए कई लोगों ने अपने तजुर्बे को हाज़रीन के सामने रखा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसर से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद लोगों को इस मुहल्लिक बीमारी का वक्त पर पता लगाने और इससे बचने की तदाबीर के बारे में जानकारी फराहम करना था। इस प्रोग्राम में बीमारों, तिब्बी माहिरीन और दीगर लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मौके पर GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं। श्रीनगर में आज चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर ने यूनिसेफ के इश्तिराक से चाइल्ड मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल वेलबींग के मौजू पर एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी साजों, सेहत के माहिरीन और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की वजीर सकीना मसूद ने किया। कॉन्फ्रेंस के मौके पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह मेहमान ज़ी-विकार की हैसियत से मौजूद रहे। सकीना मसूद ने इस मौके पर तकरीर करते हुए वालिदैन, असातिज़ा और समाज की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को यकीनी बनाएं। हजरत मीर सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज कुलगाम में मनाया जा रहा है। इस मौके पर काफी तादाद में ज़ायरीन ने उनके आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और उसके मौके पर आज शाम आस्ताने आलिया पर खत्मातुल मौज़ूमात की खुसूसी मजलिस का एहतमाम किया जा रहा है। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हजरत मीर सैयद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह सखावत व सरचश्मी, सब्र व इस्तिकलाल के आला नमूना थे। उन्होंने कहा कि दीन के तई उनकी खिदमत हमारे लिए मशअल राह है और उसके मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने और उसके मौके पर अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन सहूलियात बहम रखने की सरकार से अपील की। जिस्मानी तौर खास बच्चों की हिम्मत को बढ़ावा देने के सिलसिले में आज जिला पुलिस अनंतनाग की तरफ से नॉकआउट पैरा क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। ये टूर्नामेंट शहीद DSP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की याद में मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह SSP अनंतनाग ने किया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से माई यूथ माई प्राइड के तहत फुटबॉल लीग 2024-25 का एहतमाम किया गया। सिंथेटिक टर्फ TRC श्रीनगर में मुनक्किदा इस फुटबॉल लीग में आज स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी और यूनाइट ऑर्थल फुटबॉल क्लब के दरमियान पहला मैच खेला गया। इस मौके पर स्पोर्ट्स काउंसिल के एहलकारों ने कहा कि काउंसिल फुटबॉल खिलाड़ियों को जदीद तरबियत देने और उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। डायबिटीज के आलमी दिन के मौके पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से निशात श्रीनगर में रन फॉर डायबिटीज का एहतमाम किया गया। इस 5 किलोमीटर दौड़ को डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वादी कश्मीर में आज मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 14 और 15 नवंबर को वादी के कई मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें जबकि चंद पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि जम्मू खित्ते के कई मकामात पर भी हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने जोजिला, राजदान पास, साधना पास, सिंथन टॉप और मुगल रोड पर मुमकिन बर्फबारी के पेश नजर गाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट पैदा होने का खदशा जाहिर किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए अब हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।
ہے.